Hello everyone. The total that I would like to discuss today is hello everyone. The topic that I would like to discuss today is forest ecosystem. Forest ecosystem is a sort of ecosystem where the people used to live from the generations. The entire the tribal areas or the people from the far-flung areas are used to live there, and they are being a part of this kind of ecosystem since the generations, and they have a very unique role to play to preserve, protect the forest generation after generation. And it has correctly said that of species populate the earth in the pursuit of life, and through their capacity to reproduce, the organism use in the form of energy, water, and nutrients. For example, the sunlight is used by the plants through the process of photosynthesis to make their food in the presence of water. And organisms interact with one another in many ways, such as pollination, seed disposal, and provision of the habitat is also a very important and significant role of the forest. Now, I would like to discuss about the ecosystem. These fundamental linkages, the pollination, the seed disposal, the provision of the habitat, these are linked among the organism, and their physical and biological environment constitute an interactive and ever-changing system known as the ecosystem. Ecosystem is also called as the link between the biotic and abiotic system of the this earth or any area is called as the ecosystem. Now, the person first who proposed or used the term ecosystem is Agis Tensley in the year 1935, who defined the ecosystem as a unit or the system means combination of the things. System is considered as the combination of things which have a intricate or the unique or the coordinated or the combination and permutation of the relation between the biotic means the living organism, abiotic means the non-living organism, say for which includes these rivers, rocks are the abiotic component of the ecosystem or the environment. Ecosystem vary greatly in size and the element that make up them, but each is a function unit of the nature. Each ecosystem is a functioning unit of the nature, the fundamental unit of nature. Everything that lives in an ecosystem, हर वो चीज जो इकोसिस्टम में डिपेंड रहता है, जो इस सिस्टम में रहता है, डिपेंड रहता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज तक. For example, this grass depends on the pollination. These insects depend upon this grass for their preparation of their food. For example, this land depend upon the deer, and the deer depend upon these plants or the trees, and these trees depend upon the natural elements for through the process of photosynthesis and so on, that are also part of that ecological community. If one part of ecosystem is damaged, अगर कोई भी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम का डैमेज हो गया या किसी भी तरह से उसमें खराबी आ गई या किसी भी तरह से वो काम नहीं कर रहा है, तो इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स. ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट होता है, ताश का पत्ता होता है जिस तरह से, उसी तरह अगर एक चेन ब्रेक हो गई तो पूरी की पूरी चेन गिर जाएगी, पूरा का पूरा ताश का पत्ता गिर जाएगा. इस तरह इसमें सिस्टम काम कर सकता है. अब देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या है. जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लैंड स्पेनिंग more than 0.5 hectare with tree higher than 5 meters and the canopy over of more than 10% or trees able to reach these threshold in situ. इन situ मतलब वो चीज होता है जो जहाँ पे कोई चीज हो रहा है उसी जगह पे होना. जैसे मान लीजिए अगर आपको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब हम नेशनल पार्क बना दे, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बना दे, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी. ये हो गया इन सिटू, हो गया जो वहाँ जहाँ पे वहीं बना. और फॉरेस्ट को और सिंपल तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, उसका वर्णन किया जा सकता है कि फॉरेस्ट रिफर टू एज अ वुड और वुड्स इन एन एरिया with high density of the trees. There is a slight difference between the trees and the plant. Trees are very big in size, very broad in size, where the plants are smaller compared to the trees. And then hence फॉर इकोसिस्टम कैन बी डिफाइन ए टेरेस्ट्रियल यूनिट. एक यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इंटरेक्ट करता है अपने
इन्वायरमेंट से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में या बायोटिक कंपोनेंट में हम ऐड कर सकते हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी बहुत जो भी चीज़ आपको पता है वो चीज़ उसमें इंक्लूड कर, जिसमें जान होती है वो सब बायोटिक और द लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। ए बायोटिक में क्या आ जाएगा, जैसे सॉइल है, क्लाइमेट है, वाटर है, लाइट है, रॉक्स है, माउंटेन्स है, ये ए बायोटिक में आपका आ जाएगा। और द इन्वायरमेंटल कॉमन डिनोमिनेटर जो कहा जाता है फॉरेस्ट इकोलॉजी से, जो कहा जाता है ट्री कहा जाता है, ऑलमोस्ट फेथफुली ओबे करता है जो इकोलॉजिकल साइकिल है, वाटर, कार्बन, न्यूट्रिएंट, वाटर साइकिल हो गया, एनर्जी साइकिल में बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हो गया, कार्बन साइकिल्स हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया जिसमें फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, वाटर साइकिल में आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हो गया, कैसे क्लाउड बनता है, कैसे रेन होती है, फिर उसका कैसे प्रोसेस होता है, ये वाटर में आ जाएगा आपका। अभी देखते हैं कि वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेस में क्या, ये एक सीरीज है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, जो पार्ट बाय पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस में। अभी देखते हैं कि वर्ल्ड फॉरेस्ट में क्या रिसोर्स है, जो कुछ फैक्ट्स हैं जो कहते हैं कि 4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया जो हमारे फॉरेस्ट का, जो जंगल का से घिरा हुआ है, जंगल का कवर करता है, जो फॉरेस्ट का 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया होता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 31% ऑफ द एरिया जो लैंड का है वो फॉरेस्ट कवर करता है, और एवरेज पर कैपिटा फॉरेस्ट है 0.6 हेक्टेयर। और 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्रीज, जो 10 सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिच कंट्री, जो 67 अराउंड 70% का जो एरिया है वो वर्ल्ड का कवर करता है, और रिमेनिंग जो 33% है वो 213 कंट्रीज में है। ये एक तरफ से हमें दिखाता है कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, कि जो फॉरेस्ट रिच कंट्रीज हैं, जो 10 फॉरेस्ट रिच कंट्री उसमें 70% एरियाज है, और 33% में 213 कंट्री मिला के पूरा 33% बना रहे हैं। देखते हैं कि जो 10 टॉप जो 10 फॉरेस्ट कंट्रीज हैं, जिसमें हमारा सबसे ऊपर रशिया रहेगा, हमारा इंडिया भी है उसमें, जिसमें 68 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया है। और रशिया के बाद आपको ब्राज़ील हो जाएगा, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, चाइना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो आपका अफ्रीका में पड़ा, ऑस्ट्रेलिया हो गया जो ओशियानिया में आता है, इंडोनेशिया हो गया जो आसियान कंट्रीज़ का एक पार्ट है, सूडान हो गया जो अगेन अफ्रीका में है। और कंट्रीज में देखते हैं कि हाईएस्ट किस कंट्री का, जो एक तो एरिया हो गया, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा रशिया है, फिर ब्राज़ील है। अब देखते हैं कि परसेंटेज क्या है, जो लैंड का एरिया उसमें कितना परसेंटेज सबसे ज़्यादा टॉप पे का, टॉप पे हमारा फ्रेंच गुयाना जो 98% एरिया है हमारा, जो फॉरेस्ट का एरिया कवर करता है उस पूरे लैंड एरिया का, उस कंट्री के लैंड एरिया का, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, टेरिटोरियल एरिया, उसमें से 98%। अगर हम मान लीजिए उस पूरे जो फ्रेंच गुयाना 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, अगर मान लीजिए, तो वो 98 किलोमीटर उसका फॉरेस्टेड एरियाज में है, ये इसका मतलब हुआ। और सूरीनेम में 95% एरियाज हो गया, फॉलोड बाई माइक्रोनेशिया फेडरल स्टेट्स है जो 92% है, अमेरिकन सामोआ में 89%, सेशेल्स में 88% है, इस तरह ये सब कंट्रीज हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ इंडिया 2011 में, अभी 21 वाला रिपोर्ट थोड़ा लेट आएगा। हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में आई विल डिस्कस अबाउट दैट द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द इंडिया। द फॉरेस्ट कवर इंडिया फॉरेस्टली इंक्लूड्स ऑल द लैंड्स, ये all lands which have a tree canopy of density of more than 10% with projected vertically on the horizontal ground with a minimum aerial extent of 1 hectare, अराउंड 1 हेक्टेयर होना चाहिए। और इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है 21% एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया और टेरिटोरियल एरियाज है। और चार पांच कैटेगरी, देयर आर द 4 to 5 कैटेगरीज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट, in very dense forest, then moderately dense forest, open forest, scrub forest, and non-forest. ये these are the some picks of the dense forest, moderately dense forest, open forest, and scrubs. Now, forest cover in India, around non-forest cover around 77% areas of the country cover non-forest, and followed by this open forest 8.7%, not open forest, this moderately dense forest 9.76%, followed by open forest 8.75%, वेरी डेंस फॉरेस्ट इज अराउंड 2%, 2.5% एरिया जो भारत का है वो वेरी डेंस में है, और बस 1.5% स्क्रब्स में आता है।
देखते हैं स्टेट वाइज क्या स्थिति है हमारे भारत देश में। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, सेवन सिस्टर्स का एक ग्रुप है ये, जो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया है जो फॉरेस्ट कवर है। जो फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ है, जो हमारे मध्य प्रदेश से 2011 में डिवाइड हुआ है, निकला हुआ है। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र उड़ीसा है। और ये है हमारा फॉरेस्ट कवर है, ये किलोमीटर्स में है। और ये परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे अधिक सबसे अधिक हमारा मिजोरम का है। मिजोरम के बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है 81% के साथ, अरुणाचल प्रदेश 80% के साथ, मेघालय 77% के साथ, और त्रिपुरा है 76% के साथ। मिजोरम इसमें हाईएस्ट परसेंटेज में, मिजोरम सबसे हाईएस्ट 90.68% है। अगर एरिया में देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश पूछेगा। अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछे कि एरिया में सबसे ज्यादा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम होगा। और इस तरह सा कुछ क्लासिफिकेशन है जो इंडिया फॉरेस्ट कवर का है। जो हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब पूरे अपने देश के राज्य और यूनियन टेरिटरी का मैप्स है, आप देख सकते हैं पॉज करके। अभी हम आते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या, कुछ कुछ देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हुआ है फॉरेस्ट का डिक्लाइन हुआ है, जो -281%, 281 हेक्टेयर ऑफ द लैंड है। और उसके बाद पंजाब में सेम स्थिति है, लगभग लगभग 100% रहा है रियल चेंज जो हुआ है एरिया में। अब देखते हैं डिक्रीज हुआ है और इम्प्रूव कहाँ हुआ है। डिक्रीज हुआ है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, और सबसे अधिक इम्प्रूव हुआ है हमारा पंजाब में, 100% इंक्रीज हुआ है पंजाब में। और महाराष्ट्र में 4% का डिक्रीज हुआ है। 4% नहीं है, एरिया के हिसाब से ये कि मतलब कि कितने किलोमीटर्स में ये था, अभी ये कितना किलोमीटर्स में है। और जो पंजाब में भी वो ही है कि कितने किलोमीटर्स में था। 1666 किलोमीटर में पहले था, 66 हेक्टेयर में था, सॉरी किलोमीटर नहीं, हेक्टेयर्स में था। और जो 1764 में हो गया, तो 100 हेक्टेयर एरिया बढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है कि फॉरेस्ट जो है कि वर्स्ट प्लेस टू लिव बट इज द मोस्ट काउंटलेस स्पीशीज। मतलब ऐसा कहा जाता है, तो मैं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ से कि वर्स्ट प्लेस तो नहीं है कभी भी। लेकिन सम ऑफ द रिनाउंड राइटिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस। और ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हम इंसान इस इकोसिस्टम के पार्ट है, भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस इकोसिस्टम। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिस्टम से कनेक्टेड है। और जो एनर्जी फ्लो है, चाहे बायोजियोकेमिकल साइकिल है, या फूड चेन है, जिसमें फूड वेब होता है कि एक फूड चेन में बॉटम से लेकर टॉप तक, फूड चेन में टॉप सबसे पहले आपका हर्बीवोर्स हो गया, फिर कॉर्निवोर्स हो गया, फिर टॉप कॉर्निवोर्स हो गया। ये चेन होती है कि एक अगर एक भी किसी को भी हटाया गया तो फिर दिक्कत है कि फॉरेस्ट गेट अल्टर्ड और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इट बिकम नेसेसरी टू use the available in the forest ecology so that maximum satisfaction without disturbing the tender। ये एक तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें उतना ही फॉरेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिवाइव हो सके। उतना नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए कि वो रिवाइव ही ना हो पाए। और इसी के साथ मैं I would like to thank to all of you for listening, and if you feel that you have gained something from this video, do like, share, subscribe and comment on my channel. Thank you.